हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा स्टडी टॉपिक है चार्ल्स डिकन्स की एक नॉवेल विच इज टाइटल्ड एज ओलिवर ट्विस्ट। फ्रेंड्स, ओलिवर ट्विस्ट के बारे में जानने से पहले वी शैल सी द शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स जो थे वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे और बहुत सारी नॉवेल्स उन्होंने लिखी है। इन हिज करियर ही एंजॉयड a wider popularity during his lifetime than had any previous author, and much of his work could appeal to the simple and the sophisticated, to the poor and to the queen. And technological developments as well as qualities of his work enabled his fame to spread worldwide very quickly. अगर हम उनके करियर के बारे में जाने तो देखिए हमें यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है कि जो उनका एरा था, विक्टोरियन एज था, उसमें उन्होंने ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं की थी। ही वॉज वेरी नेग्लिजिबल, he was uncharacteristic, he was disregarded, and he was not admired at that time in the Victorian period, especially uh, by his contemporaries. But nowadays, he is now admired and he is respected and he got popularity nowadays. That means his works, whatever works he had created, now they are admired, they have become popular. And the most abundantly comic of English authors, he was much more than a great entertainer. The range, compassion, and the intelligence of his apprehension of his society and its shortcomings enriched his novels and made him both one of the great forces of 19th century literature and an influential spokesman of conscience of his age. तो हम थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पे हम देख लेते हैं चार्ल्स डिकन्स के बारे में। अगर यहाँ पे मैंने एक इमेज आप सभी को दिखाई है, वो है चार्ल्स डिकन्स वाज बोर्न इन द हाउस ऑफ 7th February 1812, and this plaque was placed here by the Portsmouth branch of the Dickens Fellowship in May 1978. So friends, बचपन में his infantry or his infant life childhood he had lived in Portsmouth. His happiest childhood years were spent in Chatham, and that was the era from 1817 to 22, an era to which he often reverted in his fiction. And from 1822, he lived in London until 1860. And after that, friends, his origins were middle class, and he was from a respectable family. One grandfather had been a domestic servant, and the other was an embezzler. His father, a clerk in the Navy pay office, and was well paid. चार्ल्स डिकन्स एक ऐसा कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिखाई देता है who lived in poverty. We can say, मैंने अभी अभी मिडिल क्लास कहा था, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सारी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली को फेस करनी पड़ी थी, और उसी के कारण हिज स्कूलिंग वाज आल्सो एंडेड एट द एज ऑफ 15. Then he became a clerk in solicitor's office and then shorthand reporter in law courts. Uh, and finally, like other members of his family, a parliamentary and newspaper reporter. These years left him with lasting affection. तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो उन्होंने ही हैड वर्क फॉर जर्नलिज्म also. Later on, from 1832, he became a professional actor,
and in 1833 he began contributing to stories and descriptive essays to magazines and newspapers. These attracted attention and were reprinted as sketches by Boz. फ्रेंड्स, उसी के साथ उन्होंने लिखना शुरू किया और नॉवेल्स लिखे थे। तो उनकी जो आर्टिस्टिक राइटिंग्स थी, तो वो थी पिकविक पेपर्स थे। उसी के साथ उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड ये नाम से भी एक नॉवेल लिखा था। उसी के साथ उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट लिखा है और बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स है जैसे कि निकोलस निकलबाई, देन बारनबी रज, क्यूरियोसिटी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ऐसी बहुत सारी नॉवेल्स उन्होंने लिखी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इमेजेस भी दिखाई है कि किस प्रकार की नॉवेल्स, किस टाइटल से उन्होंने नॉवेल्स अपनी पब्लिश की हुई है। तो ये सारी नॉवेल्स उन्होंने लिखी है अपने करियर में दोस्तों। देखिए, मैसेज फ्रॉम द सी, देन क्रिसमस कैरल, हॉलिडे रोमांस, हार्ड टाइम्स, ये सारी नॉवेल्स उन्होंने अपनी लाइफ में लिखी है। तो his self-assurance and artistic ambitiousness, all these things were appeared in his novels. Like चार्ल्स, उनकी जो ऑलिवर ट्विस्ट अगर नॉवेल देखी जाए या फिर डेविड कॉपरफील्ड देखी जाए या फिर पिकविक पेपर्स देखे जाए, तो उनमें एक प्रकार की कॉमेडी भी हमें दिखाई देती है। तो ये जो सारी बातें हैं उन्होंने सेंट्रलाइज्ड किया हुआ है एक सोशल मोरल इविल, जो कि उनका एक इंटेंशनली एक क्या कह सकते हैं हम कि उन्होंने वो क्रिटिसाइज किया हुआ है कि सोशल और मोरल इविल्स भी उन्होंने क्रिटिसाइज किए हुए हैं, वर्क हाउस हो या क्रिमिनल वर्ल्ड के हो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लाइफ में बहुत सारे वर्क्स लिखे हुए थे और उनको उस टाइम नहीं, लेकिन आज के दिनों में कंटेम्प्रेरी एज में उन्होंने उतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की, लेकिन आज हम अगर देखें तो बहुत सारी पॉपुलैरिटी उनके वर्क्स को मिलती हुई हमें नजर आती है। और सभी सिलेबस में, सभी यूनिवर्सिटीज में उनके जो नॉवेल्स है वो स्टडीज के लिए है, ये भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम टर्न करते हैं अपनी नॉवेल की तरफ, जो कि उनकी बहुत ही अच्छी नॉवेल, बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है, ओलिवर ट्विस्ट। व्हाट एक्चुअली इज द ओलिवर ट्विस्ट? ओलिवर ट्विस्ट एक ऐसी नॉवेल है जो उन्होंने सीरीज के सीरीज की तरह पब्लिश की हुई थी। राइट फ्रॉम 1837 टू 1839 he had published this novel in a 3-volume book. The story follows the titular orphan boy. ओलिवर ट्विस्ट नाम का जो एक लड़का है उसकी ये स्टोरी है, और ये जो लड़का है वो उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल भरा हुआ है। पहले तो वो ऑर्फन था, फिर उसे वर्क हाउस में किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिली, उसके बाद वहां से छूटा तो वहां किस किस प्रकार के लोगों में वो रहता था, वो क्रिमिनल वर्ल्ड में कैसे एंटर हुआ, वहां पे उसे कैसे सफर होना पड़ा, और वो अपने मोरल्स के साथ जीता था फिर भी वो किस तरह फंसता चला गया और उसे किस प्रकार से बाहर निकालना पड़ा, या फिर वो किस प्रकार से बाहर आ गया। ये सारी जो चीजें हैं, उसकी लाइफ का जो पूरा स्ट्रगल है, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे स्केच किया हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, ओलिवर ट्विस्ट, which is also titled as the Parish Boy's Progress. This is the second novel of Charles Dickens, and जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे वर्क हाउस कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें समझाया है किस प्रकार से वर्क हाउस कल्चर था उस टाइम में। वर्क हाउस यानी कि एक ऑर्फनेज जहाँ पे पुअर ऑर्फन बच्चे जो है रहते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, लेकिन किस प्रकार से उन्हें वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर उन्हें वहां पे डोमिनेट किया जाता है, किस प्रकार से फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है, मॉरली उन्होंने उनका शोषण किया जाता है,
तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताई हुई है। देखिए, ये जो है ओलिवर ट्विस्ट, वो शुरुआत में एक ऑर्फनेज में या फिर वर्क हाउस में रहता था, एंड आफ्टर दैट he meets a gang of juvenile pickpockets led by elderly criminal Fagin. He discovers the secrets of his parentage. Fagin discovers the secrets of Oliver Twist's parentage and reconnects with his remaining family. Oliver Twist, it is a novel which is unromantically portrays the sordid lives of criminals and exposes the cruel treatment of the many orphans in England in the mid 19th century. विक्टोरियन एरा में जो ऑर्फन्स थे या फिर ऑर्फनेजेस थे, या फिर उन्होंने एक वर्ड बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे यूज किया हुआ है, वर्क हाउस या फिर वर्क हाउस कल्चर। तो वहां पे उन लोगों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलती थी, ये बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे एक्सपोज किया है इस नॉवल के थ्रू। उसका ऑथर टाइटल मैंने आपको बताया है, पेरिश बॉयज प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि इट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द सोशल नॉवेल्स वेयर डिकन सैटिराइजेस चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, द रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज क्रिमिनल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट में, ओलिवर ट्विस्ट टाइटल के नॉवेल में ओलिवर ट्विस्ट कैरेक्टर के थ्रू हमें बताई हुई है। द नॉवेल मे हैव बीन inspired by the story of Robert Blincoy, an orphan whose account of working as a child laborer in a cotton mill was widely read in 1930s. And it is likely that Dickens's own experiences as a youth contributed as well, considering he spent 2 years of his life in the workhouse at the age of 12 and subsequently missed out some of his education. तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ओलिवर जो है वो वर्क हाउस में जाता है और वहां पे किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती है। शुरुआत में तो उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता था, और एक दिन जब उसने ये कहा कि आई वॉन्ट सम मोर, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, तो उस पे बहुत ही जोर से चिल्लाया गया था। वहां के जो वर्क हाउस के ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, तो ग्रेट अप्रोवर एंस्यूअर्स एट दिस परस्यूड एक्ट ऑफ रिबेलियन। मुझे और खाना दो, हमें और खाना चाहिए। तो इस बात पर उसे बहुत ही मारा गया था। तो ओलिवर एट दैट टाइम वाज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क हाउस एंड पुट इन अ सॉलिटरी confinement. He is flogged every day by Biddle, Mr. Bumble, of which 3 times a week in front of the other boys. And sometimes Oliver is offered at a premium as apprentice. He is taken by Mr. Sowerberry, an undertaker, and one day his jealous co-apprentice No Claypole insults Oliver's mother. कुछ जो बातें हैं इंसल्टिंग ओलिवर की माँ के बारे में वो कह देता है यहाँ पे मिस्टर क्लेपोल, और ये सारी बातें सुनने के बाद ओलिवर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे आ, मारने के लिए दौड़ता है। ही अटैक्स, ओलिवर अटैक्स नो क्लेपोल, और उसके बाद क्या होता है कि ओलिवर ही पनिश किया जाता है, ओलिवर को ही पनिश किया जाता है। व्हेन ही इज पनिश्ड बाय मिस्टर बम्बल एंड मिस्टर सॉरबरी, ओलिवर एट दैट टाइम रन्स अवे फ्रॉम द वर्क हाउस, एंड where he went, that was the city of London. There he meets a young man named Jack Dawkins, who was also called as the Artful Dodger, who offers him food and lodging and takes him to an infamous criminal known as Fagin. अब ये जो फैजिन है वो ओलिवर को बताता है कि किस प्रकार से पिक पॉकेटिंग करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एक बात हमें समझ लेनी है कि फैजिन वाज द लीडर ऑफ पिक पॉकेटर्स एंड ही यूज्ड टू ट्रेन
the orphans as the pickpocketers. Oliver was very innocent at that time. Innocently he begins Fagins training. उसे पता नहीं था, इंटेंशनली तो वो पिक पॉकेटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, तो अनइंटेंशनली, बहुत ही इनोसेंटली he had begun the training of pickpocketing. But when he goes out with the Dodger and another boy, he sees them stealing a handkerchief from an old gentleman named Brownlow, and he realizes the truth. Now, he thinks that it is an illegal act, immoral act. We should not do this. Why? Because it is a criminal act. So while the Dodger and other boy escape, Oliver is pursued, apprehended, and formally arrested and tried before magistrate Fang. तो इसमें वो फंस जाता है ओलिवर. उसे पता नहीं होता है कि ये पिक पॉकेटिंग कर रहे हैं, और वो करता है, लेकिन वो फंस जाता है बिकॉज ही इज नॉट अ हैबिचुअल पिक पॉकेटर. तो उसके बाद Oliver has confessed all the things in front of that person, and Fagin was quite worried that Oliver might incriminate him and his gang. Fagin sends a young woman named Nancy and her abusive lover, Bill Sykes, to abduct Oliver and bring him back to Fagin's lair. तो जब वो सारी चीजें बताने जा रहा था मैजिस्ट्रेट के सामने, तो फैजिन जो है, उसे लगता है कि शायद मेरी पूरी टीम जो है पिक पॉकेटर्स की कहीं जेल के अंदर ना चली जाए. तो इसकी वजह से वो क्या करता है कि बिल साइक्स और नैन्सी को वहां पे भेज देता है और उसे लेके आने को कहता है. तो वो उसे किडनैप करके लेके आते हैं, और द रॉबरी विच हैड बीन कमिटेड that goes wrong while Sykes escapes Oliver after having been wounded and ends up in the care of people he was supposed to rob, Miss Rose and her guardian, Mrs. Melly. तो ये बिल साइक्स और नैन्सी को जो भेजा गया था उसे एबडक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए ओलिवर को, तो उस टाइम जिन लोगों के हाथों से उसे छुटकारा चाहिए था, उन्हीं लोग हैं जो कि ओलिवर को पकड़ते हैं, सॉरी, ओलिवर को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी देते हैं. दे बिकेम द गार्डियंस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट लेटर ऑन, मिस रोज एंड हर गार्डियन मिसेस मेली. तो यहाँ पे एक लेटर ऑन, फ्रेंड्स, नैन्सी गेट्स रैक्ड for her role in Oliver's kidnapping, and secretly spies on them and passes the information on to Rosemary, who tells Mr. Brownlow about that kidnapping. Meanwhile, the artful Dodger is arrested for pickpocketing and tried and sentenced. No Claypole, who had fled to London with Sorbury's maid Charlotte after robbing Mr. Sorbury, joins Fagin's gang. Following Fagin's orders, he follows Nancy and discovers that she meets with Mr. Brownlow and Rose for the sake of Oliver's welfare, fearing that Nancy has betrayed him and Sykes. तो उसके बाद Fagin passes the information on to Sykes, who beats Nancy to death in a fit of rage and goes into hiding. And he is recognized by an angry mob and attempts to flee. ये सारी चीजें जो घट रही थी उसी में फैजिन इन हिज सेल बाय hangs himself, and Mr. Brownlow has monks arrested and forces him to divulge his secrets. He is actually Oliver's half brother and had hoped to steal Oliver's half of their rightful inheritance. Brownlow begs Oliver to give half his inheritance to monks and grant him second chance, to which Oliver happily agrees. Friends, उसके बाद monks जो है they immigrated to America
but squanders his money, relapses into crime, and dies in prison. Uh, Friends, Rosemary, who turns out to be Oliver's maternal aunt, marries and enjoys a long life. Oliver lives happily as Brownlow's adopted son. फ्रेंड्स, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट, मिस्टर बम्बल, मिसेस मन, सॉरबरी, नो क्लेपोल, या फिर चार्लोट, मिस्टर ब्राउनलो, नैन्सी, रोजमेली, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं हमें ध्यान में रखने हैं। फैजिन हो या बिल साइक्स हो, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं स्टडी के लिए। और उसी के साथ हम इसकी जो कुछ थीम्स है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। ओलिवर ट्विस्ट, मैंने जैसा कि आपको बताया कि सोशल और मॉरल इविल्स जो है उन्होंने, चार्ल्स डिकन्स ने इस नॉवेल में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज किए हुए हैं। तो चार्ल्स डिकन्स also mixes grim realism with merciless satire to describe the effects of industrialism on 19th century England and to criticize the harsh new poor laws. ये जो इफेक्ट है इंडस्ट्रियलिज्म का, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें समझाया हुआ है किस प्रकार से सोसाइटी सफर करती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया हुआ है ओलिवर ट्विस्ट के कैरेक्टर के थ्रू। Oliver, an innocent child, is trapped in a world where his only option seems to be the workhouse, a life of crime symbolized by Fagin's gang, a prison, or an early grave. From this unpromising institutional setting, a fairy tale also emerges. In the midst of corruption and degradation, the essentially passive Oliver remains pure-hearted. He steers away from evil when those around him give in to it. And in a proper fairy tale fashion, he eventually receives his reward, living for a peaceful life uh, in the hustle and bustle of the city of London. And on the way to his happy ending, Dickens explores the kind of life an outcast orphan boy could expect to lead in 1830s London. The second theme, which has been exposed by Charles Dickens through this novel, is poverty and social class. Poverty is a prominent concern in Oliver Twist. Dickens enlarged on this theme, describing slums to decrepit that whole rows of houses are on the point of ruin. Oliver attends a pauper's funeral with Mr. Sorbury and sees a whole family crowded together in one miserable room. This prevalent misery makes Oliver's encounters with charity and love more poignant. Oliver owes his life several times over to kindness, both large and small. सिंबोलिज्म भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है डिकन्स ने, and it makes a considerable he makes the considerable use of symbolism here. The merry old gentleman Fagin, for example, has satanic characteristics. He is a veteran corrupter of young boys who presides over his own corner of the criminal world. He makes his first appearance standing over a fire holding a toasting fork, and he refuses to pray on the night before his execution. तो इस प्रकार से ये फैजिन जो है एक बहुत ही सेटनिक कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और एक सिंबलिज्म है इसमें सेटनिक कैरेक्टर के थ्रू एक फैजिन का। तो ये उन्होंने ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये जो समरी है या फिर थीम्स थे या फिर कैरेक्टर्स थे मेरे इस वीडियो में, तो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये ओलिवर ट्विस्ट जो बहुत ही पॉपुलर बना हुआ है नॉवेल चार्ल्स डिकन्स का, तो ये भी आपको इंटरेस्टेड लगा हुआ हो तो आप इसे ज़रूर स्टडी कीजिएगा।
ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे लिटरेरी आर्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को भी लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।